Part second begins with Article 5, and what it says is a general statement regarding anyone who is going to be the citizen of India on 26 January 1950. In fact, this particular part was implemented on 26 November 1949. And of course, on 26 January 1950, the whole document was implemented. But citizenship clause was implemented on 26 November. So what this Article 5 says is, at the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and A, who was born in the territory of India, or either of whose parents was born in the territory of India, or who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years, immediately preceding such commencement. So all such people shall be a citizen of India. So here you need to focus on one expression, domicile. A person who has been living in the territory from, let us say, unknown times, and the person has intention to stay in the territory of India. On 26 November 1949, that was the intended date. So उस समय पे डोमिसाइल स्टेटस था जिसका, वो सारे लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट किया गया. लास्ट में जो सी है, 5 का सी क्लास, वो कह रहा है ए पर्सन हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट in the territory of India for not less than 5 years, immediately preceding the commencement of the Constitution. So suppose someone who was a British government servant and he was serving in this part, and if the person served for 5 years, so ordinarily resident means he has been coming and going, that is fine, but he was here in the last 5 years with intermittent coming and going. So that person was also given right to acquire Indian citizenship under clause 5C. All those who were residing in this territory, they were granted citizenship under clause Article 5. Article 6 is related to the person who migrated to the territory of India from Pakistan. Article 6 is related to granting the citizenship to all such persons who migrated from Pakistan to India, and they were required to satisfy the conditions given below. And 19th day of July 1948 was the cutoff date. उनको इस क्लास के तहत citizenship दिया गया था. 19th day of July was the date when India and Pakistan agreed to grant permit to all such individuals who wanted to leave one territory and go to another territory. Article 6 talks about the citizenship of all such individuals who migrated from Pakistani territory to Indian territory. Then Article 7 is related to all those people who migrated either from India to Pakistan or Pakistan to India. आर्टिकल 5 और 6 के तहत जिनको सिटीजनशिप नहीं मिला है, ये आर्टिकल 7 उनके लिए था. जो 5-6 के तहत जिनको मिल गया वो आर्टिकल 7 में नहीं आएंगे. तो आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India unless the person came back under this permission. ये जो परमिशन था 19th day of July, परमिट उसको मिला तो फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, इस डेट के बाद जो भी इंडिया से पाकिस्तान गया वो सिटीजन नहीं रहेगा, ये कहा गया. लेकिन
कुछ लोग यहाँ से गए और फिर वहां से वापस आ गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर इंडिया वापस आ गए परमिट सिस्टम के थ्रू। जब ये परमिट बना दिया गया 19th डे ऑफ जुलाई 1948, तो जो लोग ऐसे थे कि इंडिया से पाकिस्तान गए लेकिन फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए, उनके लिए ये आर्टिकल 7 कहता है कि उनको सिटीजनशिप मिलेगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। लिखा है ना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू ए पर्सन हु after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall, for the purpose of clause B of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after 19th day of July 1948। तो जो यहाँ से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से वापस आ गया, उसको जो आर्टिकल 6 का बी क्लॉज है उसके तहत ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से इंडिया लोग आए उनको सिटीजनशिप देने की बात थी, आर्टिकल 7 में जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस आए उनके सिटीजनशिप देने की बात थी। फिर आर्टिकल 8 क्या कहता है कि ये जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन उस समय इंडिया से बाहर रह रहे थे, तो आर्टिकल 8 उनके लिए सिटीजनशिप का प्रोविजन करता है। तो उनके लिए कंडीशन लगाया गया कि नॉर्मली आर्टिकल 5 जो है वो तो बात करता है कि सबको सिटीजनशिप मिल जाएगा जो इंडिया में डोमिसाइल स्टेटस है जिसका। अब जिसका इंडिया में डोमिसाइल नहीं था उनका क्या स्टेटस होगा? जो बाहर रह रहे थे उनको भी तो सिटीजनशिप कुछ लोग क्लेम किए। तो Article 8 basically it is a kind of complementary article to Article 5। Article 5 में जो डोमिसाइल था जिसका उसको दिया गया सिटीजनशिप, Article 8 जिसका डोमिसाइल नहीं था बट ही वाज इंडियन ओरिजिन पर्सन, तो उसके लिए ये बना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन Article 5 एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935, and so India as defined in Government of India Act 1935, कौन सा इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था बिफोर जो 1935 में, उसमें वो पैदा हुआ था या उसके कोई पेरेंट पैदा हुए थे या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई पैदा हुआ था, और who is ordinarily residing in any country outside of India as so defined shall be deemed to be citizen of India under what condition? If he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him thereafter to such. Those who were from the British India, undivided India, they were born, and if they had intention to be Indian citizens, so what they were required to do? They were required to register themselves in the consulate of India, wherever, in whatever country they were residing. But certainly not the people from Pakistan, right? कॉन्सुलेट बाकी जगह के, पाकिस्तान का कॉन्सुलेट नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान में जो था उसको दे दिया, उनको तो जो लेना था वो इधर आके ले सकते थे, उनके लिए वो प्रोविजन किया गया था। कि ये जो कहा गया कि दे कैन रजिस्टर इन द कॉन्सुलेट ऑफिस और इन द डिप्लोमेटिक विद द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन एनी अदर कंट्री, so that country excluded Pakistan because it was a matter of division. So, and Article 6 and 7 make enough of provision for such people from Pakistan. So Article 8 is talking about the people from undivided India who were residing in other countries and they intended to be Indian citizen. उसमें कोई religion, कोई caste इसका का कोई कंसर्न नहीं था, वो अनडिवाइडेड इंडिया के थे, that was good enough.
to claim Indian citizenship. So that is Article 8. Now Article 9 talks about the persons who have acquired citizenship of some other country. So Article 9 is in fact barring some such individuals from taking Indian citizenship. लिखा है, no person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. तो दूसरे देश का नागरिक है, इसलिए वो इंडिया का नागरिक नहीं हो सकता. फिर Article 10 is an assurance to all people who acquired Indian citizenship to continue to be the citizen of the country. Article 10 ये कहता है कि जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिला है वो इंडियन सिटीजनशिप टेम्पोरल नहीं है, वो कंटिन्यू करता रहेगा और वो continuance will be subject to the provisions of any law that may be made by Parliament. तो आर्टिकल 10 कह रहा है, every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो नहीं है, 5, 6, 7, 8 subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, and such persons will continue to be the citizen of India. So last article in this part empowers the Parliament to make laws with respect to the provisions of citizenship. So how citizenship can be acquired, how citizenship can be terminated, how citizenship can be granted. So all such powers were given to Parliament. No power is given to any state assembly or any other legislative body of the nation. Only Parliament has right over part 2 and part 1. In fact, you have seen that part 1 and part 2 both. So Article 11 जैसे Article 4 जो है कह रहा है पार्ट 1 के बारे में, इसी तरह आर्टिकल 11 पार्ट 2 के बारे में कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज सोल अथॉरिटी टू मेक लॉज with respect to citizenship provisions. So in exercise of this power granted under Article 11 in part 2, Parliament designed a Citizenship Act in 1955, and all later amendments were made in that particular act to define as per the need of the hour. So let me show you that thing also. I think I have opened it here. The Citizenship Act 1955. This act talks about all the ways a person can acquire citizenship and the way a person can be denied citizenship, right? So citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship by naturalization, and then some special provision with respect to Assam, and then citizenship by incorporation of any territory in the region. So I just made a table. Can you see the table? Citizenship, जैसे हम सारे लोग सिटीजन हैं और हम में से कोई भी 1947 या 49 में नहीं था, तो हमको सिटीजनशिप जो मिला हुआ है वो किस प्रोविजन के तहत मिला हुआ है? सो नंबर 1 इज सिटीजनशिप बाय बर्थ. तो हमें से ज्यादातर लोग, मुझे लगता है सारे ही होंगे, अगर कोई एक आध हो तो, जिनका जन्म भारत की जो जियोग्राफी है यहाँ हुआ था. तो हम सारे लोग लगभग हैं. अगर कोई नहीं होगा तो मुझे बताना, वो बताएगा कि मैं भारत में नहीं पैदा हुआ था, किसी और कंट्री में पैदा हुआ था और इंडियन सिटीजन हूँ. तो मैं पहले ऐसे लोगों की बात कर रहूँगा जो भारत के जियोग्राफी में पैदा हुए. ओनली दे कैन राइट सिटीजनशिप बाय बर्थ. तो आप फॉर्म में भरते हो जहाँ लिखते हो सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन है कब से? जन्म से लिखते हैं, बाय बर्थ, राइट? तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है? सो ए पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया
on or after 26 January 1950 up to 30th June 1987, that person is citizen of India by birth. Number one. This is number one provision. 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद और 30 जून 1987 तक जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक हो गया। और ये आप हरदम उसमें जोड़ते रहिए कि अनलेस अदरवाइज, इंडिया में अब आज नहीं है, लेकिन 87 के पहले यहाँ भी ऐसा ही था। ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया on or after 26 January 1950 till 30th June 1987 will be citizen by birth। फिर उसके बाद उसमें चेंज किया गया, जो अभी आपको मैंने दिखाया ना, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये सब उसी में चेंज करते रहे टाइम टू टाइम। तो 86 में एक एक्ट आया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 86 में आया, उसमें ये चेंज किया गया। क्या कहा गया कि एनी पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 टिल 2 दिसंबर 2004, इस ड्यूरेशन में जो पैदा हुआ उसके लिए क्या है कंडीशन कि द पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया एंड आइदर ऑफ द पेरेंट्स was a citizen of India at the time of the birth of the child। इस ड्यूरेशन में जो भी पैदा हुए उनमें एक राइडर और लगाया गया। ऊपर वाले में वो राइडर नहीं था, वो सिर्फ पैदा हुआ, बस इतने से ही उसको सिटीजनशिप क्लेम कर सकता था। तो 86 में जो अमेंडमेंट किया गया उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 1987 से हुआ। उसमें ये राइडर लगा दिया गया कि आप भारत में पैदा हों, लेकिन जब आप पैदा हुए हैं उस समय आपका कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजनशिप कार्ड होल्डर हो, ये राइडर लगाया गया। तो वो लिखेगा सिटीजन बाय बर्थ। फिर एक 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के थ्रू और जो अभी तक चल रहा है वो ये है, बॉर्न समवन हु इज बॉर्न ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, उसके लिए ये कंडीशन और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना दिया गया कि आप भारत की ज्योग्राफी में पैदा हों, पैदा होते समय बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें कि आपके दोनों पेरेंट्स सिटीजन हैं इंडिया के, हमारे में से ज्यादातर लोग इसी में आते हैं, या इफ वन पेरेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर पेरेंट इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो आप इस कैटेगरी में आओगे, मैं इस कैटेगरी में आऊंगा। मैं 1972 में पैदा हुआ, तो मैं इस कैटेगरी में सिटीजन बाय बर्थ हूँ। आप में से अगर कोई 2004 के बाद वाला है, मुझे लगता नहीं आप में से अभी कोई ऐसा होगा, आप ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में हो। आपका जन्म 87 और 2004 के बीच हुआ होगा, तो उस समय ये कंडीशन था कि कोई एक पेरेंट सिटीजन है अगर आपके बर्थ के टाइम, तो आप इंडियन सिटीजन हो गए। वो थोड़ा सा रिलैक्स कंडीशन था। अभी कंडीशन थोड़ा सा और टाइट कर दिया गया और यही चल रहा है इस समय करंट में। तो ऐसे लोग जो भारत की टेरिटरी में पैदा हों और उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो, या एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, माइग्रेंट भी हो तो वो लीगल माइग्रेंट हो, मतलब विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से यहाँ आया हो। और ये आप जानते हैं कि बांग्लादेश से हमारा ज़्यादा इससे ताल्लुक रहा है, जहाँ से माइग्रेंट बहुत आए हैं, तो उनको एक तरह से सिटीजनशिप सबको उल्टा सीधा ना मिल जाए, तो ये सारे कंसर्न थे जहाँ ये। और इसी तरह पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, और भी जो अड़ोस पड़ोस के कंट्री हैं उनके इस तरह से इलीगल माइग्रेशंस हुए हैं, मालदीव से हुए हैं। तो ये कंडीशन लगा दिया गया कि या तो दोनों पेरेंट सिटीजन होंगे तब आप इंडियन सिटीजन क्लेम कर पाएंगे, या आपका एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होगा और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, तब आप इंडियन सिटीजन से बाय बर्थ बनेंगे। तो ये तो हो गया प्रोविजन जो इंडिया की ज्योग्राफी में लोग पैदा हुए। जो ज्योग्राफी में नहीं पैदा हुए, मान लीजिए आप बाहर नौकरी कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, या आप फॉरेन जो मिशन है उसमें हैं, आईएफएस जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चे सब बाहर पैदा होते हैं,
तो जितने लोग नौकरी कर रहे हैं इंडिया के, उनके बच्चे सब, तो उनके लिए जो भी इंडिया की ज्योग्राफी के बाहर पैदा होगा उसके लिए एक ये लिखना है बाय डिसेंट, इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट। वो सारे बच्चे जो इंडिया की ज्योग्राफी के बाहर पैदा होते हैं वो अपने फॉर्म में लिखते हैं इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट अंडर दीज प्रोविजंस। तो इसमें भी चेंजेस हुए, तो आप देखें कैसे है। पहला 26 जनवरी 1950 से लेकर 9 दिसंबर 1992 तक क्या नियम था? ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, ये आप देख लीजिए, है इंडिया की टेरिटरी के बाहर पैदा हुआ, ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया एंड द फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, एंड दिस कंटिन्यूड 9 दिसंबर 1992 तक। अगर फादर इंडिया का सिटीजन रहा है तो बच्चा जो बाहर पैदा हुआ है वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। और बन सकता है इसका मतलब वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो, क्लेम कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है, लेकिन जो कागज की कार्रवाई है वो करना पड़ेगा उसको। जैसे वहाँ का एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो करना पड़ेगा। नहीं किया तो बाद में भी कर सकता है। वो यहाँ इस तारीख तक उसको ये छूट मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे ये इतना आसान नहीं रहा। तो भारत के बाहर पैदा हुआ पर्सन 1992 9 दिसंबर तक तभी सिटीजन क्लेम करता है जब उसके फादर उसके इंडियन सिटीजन हो। और आप देखिए 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आ गया, तो बहुत सारी लड़कियां भी बाहर जाने लगी और उनके भी बच्चे बाहर नौकरी करने जाने लगी, तो शादियां भी करने लगी बाहर। तो उसकी वजह से फिर देखिए ये जो चेंज किया गया सिटीजनशिप के क्लास में, तो 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक इस ड्यूरेशन में जो पैदा हुए बच्चे बाहर, उनके लिए ये रखा गया, ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया एंड आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ, राइट। तो ये जो यहाँ फादर था उसको हटा करके कोई दोनों में से कोई पेरेंट, वो फादर मदर कोई भी हो, राइट, तो ये नियम बना दिया गया, तो वो बाय डिसेंट सिटीजनशिप होगा। अब इस समय जो रूल इम्प्लीमेंट है वो 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स है, और इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, बहुत कंडीशन लगा दिया गया। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एकदम रिस्ट्रिक्शन के सेंस में बात कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि होगा सिटीजन, यहाँ कह रहा है नहीं होगा। कैसे केस में नहीं होगा? पर्सन born outside of India shall not be considered citizen of India unless his or her birth is registered at the Indian consulate within 1 year of the date of birth. In certain circumstances, it is possible to register after 1 year with the permission of the central government. आप लोगों में से बाहर लोग आप जाएंगे ही, कुछ लोग तो जरूर जाएंगे, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। आपके बच्चे बाहर जब पैदा होंगे तो आपको विद इन ए ईयर यू हैव टू रजिस्टर इन द इंडियन काउंसुलेट वेयर एवर यू आर एट दैट टाइम। और कोई मजबूरी हो गई तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर परमिशन, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया, देन यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली देन यू कैन रजिस्टर योर चाइल्ड एज इंडियन सिटीजन। फिर क्या कह रहा है? द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड मस्ट बी मेड टू एन इंडियन काउंसुलेट एंड मस्ट बी accompanied by an undertaking in writing from the parent of such minor child that he or she does not hold the passport of any other country. तो उस रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये हलफनामा देना होगा कि आपका बच्चा किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है। और अगर ऐसा पाया गया कि आपने कुछ झूठ बोला है तो तुरंत इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। तो ये था बाय डिसेंट। फिर है एक प्रोविजन बाय रजिस्ट्रेशन।
The central government may, on application, register as a citizen of India under Section 5 of the Citizenship Act 1955 any person not being an illegal, वो illegal migrant नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये कंडीशंस रखा गया. इसको गवर्नमेंट दे सकती है क्या? A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 5 years before making an application for registration. पहला. दूसरा, a person of Indian origin who is ordinarily, तो ये Indian origin आप underline करिए. A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 5 years. A person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India. उसको भी हक है, वो भी हो सकता है. A person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years. आप विदेशी से शादी करेंगे, अगर वो सिटीजनशिप क्लेम करेगा तो वो इस क्लास में आएगा. जिससे शादी किया वो कम से कम 7 साल इंडिया में रहेगा. ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब है कि हाँ आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं, इसका ये सेंस हुआ. लेकिन आपकी शादी यहाँ रजिस्टर होगी, इंडियन जो मैरिज जो भी ब्यूरो है यहाँ पे, वहाँ वो आप रजिस्टर कराओगे, उसके बाद से ही वो काउंट होगा. तो 7 साल के बाद वो बाय रजिस्ट्रेशन उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं. A person of full age and capacity whose parents are registered as citizens of India by ordinary residence of India for 7 years. हो सकता है कि पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो लेकिन बच्चा किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया हो, तो उसको भी ये चांस है कि अगर उसके पेरेंट इंडियन सिटीजन हैं तो अगर 7 साल तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में तो वो बाय रजिस्ट्रेशन वो भी बन सकता है. फिर ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, and has been residing in India for 1 year immediately before making an application for registration. तो ये ऊपर जो बातें कही गई उसमें यह है कि वो जिस साल एप्लीकेशन करेगा उसके इमीडिएटली जो 1 साल है उसके अंदर वो यहीं होना चाहिए, वो यहाँ रह रहा हो. फिर a person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India, OCI, for 5 years and who has been residing in India for 1 year before making application. ये उन पर भी जो OCI जो हैं उन पर भी ये कंडीशन लागू होता है. तो उनको रिलैक्सेशन क्या मिला? इंस्टेड ऑफ 7 years वो 5 साल में ही वो क्लेम कर सकते हैं. 5 साल अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के ईयर के पहले 1 साल वो यहीं रहे हों, ये कंडीशन है. तो दिस इज the method for acquiring Indian citizenship by registration. Last है by naturalization. ये क्या है? Citizenship by naturalization can be acquired by a foreigner जो जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं रहा है, न उसके पेरेंट्स का कुछ लेना देना रहा है, वो भी हो सकता है. उसके लिए ये कंडीशन है who has resided in India. ये रेजिडेंशियल कंडीशन लगा दिया गया. वो 12 years तक यहाँ रहा हो और the applicant must have lived total of 11 years in India in a period of 14 years. तो ये जो काउंटिंग होती है कि आप 12 साल यहाँ रह चुके हैं, इसकी काउंटिंग क्या कह रहे हैं कि 14 साल में वो 11 साल इंडिया में रहा हो, बीच में जैसे आ जा रहा हो, अपने घर आ जा रहा हो, तो उसमें ये सब काउंटिंग करके 11 साल. तो फिर वो नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 12वें साल में वो एप्लीकेशन दे सकता है इंडियन सिटीजन के लिए, और उसको सिटीजनशिप जो मिलेगा वो अपने नाम के आगे लिखेगा इंडियन सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन. तो ये हो गया जो प्रोविजन है. और लास्ट में जो आपने देखा, जो कोई टेरिटरी, मान लो मालदीव इंडिया का पार्ट हो जाए, तो एक्विजिशन ऑफ ए न्यू टेरिटरी, तो कोई नई टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट बन जाती है तो उसमें जो रहने वाले लोग होंगे दे विल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एज इट इज. मतलब
जैसे मालदीव के जो सिटीजन है, मान लो मालदीव भारत में मिलने को सोचता है, या पाकिस्तान मान लो भारत में मिलने को सोचता है, तो पाकिस्तान के जितने सिटीजन होंगे वो जैसे हैं वैसे ही इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। या बांग्लादेश कहता है हम भारत में आ जाएंगे, तो वो उसके जो भी सिटीजन होंगे, जो भी उनकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज की होगी जिस भी कंडीशन पे, दे ऑल विल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द सिटीजनशिप। अगर मैं एक सवाल पूछूं, जो इंडियन सिटीजन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस पे अभी इतना बवाल मचा हुआ था, इसके बारे में कोई आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है? सर एक्ट तो सर ठीक है सर। क्या है उसमें? सर उसमें यही है, जो 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 माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो आई थिंक 1995 से पहले जो आ चुके हैं इधर, जो यहाँ रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी 31 दिसंबर 2014। ओके। उसके पहले कब से है उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इसमें यह कहा गया कि जो 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री में जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ और उस ग्राउंड पे वो लीगल माइग्रेंट बन के इंडिया में आए, इलीगल माइग्रेंट नहीं, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी आ गया सबको नहीं मिलेगा। इस डेट तक जो लोग आए और वो विद परमिशन आए, ऐसे नहीं कि आके कहीं कोने में रहने लगे और फिर कल आके कहें कि हम आ गए थे इस डेट में। वो कैसे पता लगेगा कि 31 दिसंबर 2014 तक आए थे? उनके पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना कि हम इस दिन तक यहाँ आ गए थे। तो वो एविडेंस कौन देगा? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसको डॉक्यूमेंट इश्यू करी होगी ना। तो ये नहीं है कि कोई आके ऐसे रह रहा है और फिर आके वो अपने हाथ से लिख के देने लगे कि हाँ मैं 31 सर अगर दिसंबर। कोई जम्मू कश्मीर में माइग्रेट होता है तो उसका तो तब कोई आइडेंटिटी बनती नहीं थी, अगर वो यहाँ माइग्रेट होगा तो। कोई इश्यू नहीं है, वो कहीं भी इंडिया के किसी भी जगह है, वो सर चाहे उसको, जम्मू उसके कश्मीर। पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं ना होगा तो उसको कैसे मिलेगी सिटीजनशिप? क्या मिलेगा? सर उसको मिलेगी नहीं सिटीजनशिप, उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा अगर वो जम्मू कश्मीर में माइग्रेट हुआ होगा। डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा। सर वो बोलेगा JNK में ऐसे रूल्स थे या रेगुलेशन थी कि मेरे को नहीं मिल पाए डॉक्यूमेंट्स। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा ही ना। गवर्नमेंट किसी, जैसे अभी आप पूरे इस जम्मू कश्मीर रीजन में हर पुलिस स्टेशन में कितने लोग कहाँ रह रहे हैं इसका तो रिकॉर्ड होता ही है ना। जो जो रेवेन्यू ऑफिस होता है वहां इसका रिकॉर्ड होता है कि कितने लोग, वो कौन है क्या है ये तो अलग बात है, लेकिन कौन कहाँ रह रहा है इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसे ऐसे नहीं है कि अभी आप ही देखो, आप अपने घर से थोड़ा दूर जाकर के जम्मू कश्मीर के किसी जगह पे आप एक छोटा सा घर बनाना शुरू करो, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट कितना एक्टिव है। आप एक छोटा सा गड्ढा खोदोगे तो दूसरे दिन ही पुलिस वहां पहुंचेगी कि हाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों गड्ढा खोद रहे हो। लिखा है कि इन द सिटीजनशिप एक्ट 1935 in section 2 in subsection L in class B the following provisos shall be inserted। क्या लिखा? Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi और Christian community, 6 हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान who entered into India on or before 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government by or under class C of subsection 2 of section 3 of Passport Entry into India Act 1920। ये आप देख लीजिए, जो मैं कह रहा था ना कि 31 डे ऑफ दिसंबर को या उसके पहले आए, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ये जो पासपोर्ट, विदाउट पासपोर्ट इंडिया में इंटर करने का राइट दिया, उनको परमिट इश्यू हुआ है। तो ये नहीं कि कोई आके कह दे कि हाँ हम आए थे बस दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये पहला किया गया कि जो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट की हो, और इसके लिए उसको पूरा डॉक्यूमेंट देना होगा। और from the application of the provisions of the Foreigners Act 1946
ये दूसरा है कंडीशन। तीसरा है और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो किया गया कि उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा इन कंडीशंस के साथ। 3 कंडीशन लगा दिया गया। 4 मान लो 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले आए हों, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है उसका जो क्लास सी है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के तहत उसको छूट दिया हो कि ये कहा हो ये इलीगल माइग्रेंट नहीं है, या फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946 उसके जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत उसको राइट दिया गया हो कि इंडिया में एंटर कर सकते हो, या एनी रूल और अंडर और ऑर्डर मेड देयर अंडर। ये जो हैं पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 या फॉरेनर्स एक्ट 1946 या उसके तहत जो और भी आदेश निकाले गवर्नमेंट ने उसके तहत जो इंडिया में आया है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। और जब ये हुआ कि अब इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो उसके सिटीजनशिप देने की बात है। और कुछ आप लोग बात करना चाहें? सर सिटीजनशिप तो देंगे ना सर? हाँ सिटीजनशिप देंगे, जो इन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उसको देंगे। यस सर। जैसे सर पाकिस्तान में जब आजाद हुआ तब माइनॉरिटी थी कुछ 20% पता नहीं कितनी, तो अब वो घट के 1.5% रह गई है वहाँ पे माइनॉरिटीज। हाँ बिल्कुल। तो उनको तो सर मिलेगी ना? नहीं, पाकिस्तान वो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उनको मिलेगा, सिर्फ इससे नहीं कि वो माइनॉरिटी में हो गए इसलिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी तो उनको ट्रीट किया ही गया, वहां की गवर्नमेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूशन में उनको माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि माइनॉरिटी और जो जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, तो ये माना जाता है कि जो ये 3 इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ जो माइनॉरिटी है उनके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। यस सर। तो इसकी वजह से उनको ये हक दिया गया। तो इस पे 2 मुद्दे, जैसे मैंने कहा कि 2 डिबेटिंग क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हेन यू कंसीडर माइनॉरिटीज ऑफ एनी कंट्री, सो शियाज और अहमदियाज they are treated badly in Pakistan, Bangladesh, and maybe in other regions also. So why don't you consider them also as religiously persecuted population? This is debate number 1. Second debate का point जो बनता है कि the Constitution of India says that there cannot be any discrimination on the grounds of religion, sex, caste, etc., right? Place of birth, etc. So you cannot discriminate on religious ground for granting citizenship, and for other purposes you already have provision within। जो हमने आज देखा जैसे सिटीजनशिप का जो क्लास है उसमें जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन है, बाय रजिस्ट्रेशन है, ये तो है ही है, सबके लिए है ओपन। वो तो शिया है कि क्रिश्चियन है कि क्या है, उनके लिए तो है ही है, ये तो ऑलरेडी है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कह दी गई है तो आप अलग से ये क्यों कहना चाह रहे हो, और उसमें भी आप रिलीजन का बेस ले रहे हो, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सीधे ना करता है कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ऑफ दीज ग्राउंड्स नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि दिस इज नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ religion only. Why? Because we are considering people coming from different religious traditions. So it is not just one religion. And then the consideration is not only their religious ground, but also the injustice done to them for being part of that particular religious community. So it is not only religion, but also injustice which is done to them. And therefore it is not unconstitutional
सेकंड जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 का, दिस इज नॉट मेंट फॉर मुस्लिम्स. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन माइनॉरिटी इन दीज 3 कंट्रीज, राइट? तो इसके लिए बाकी जो लोग हैं वो एक काउंटर आर्गुमेंट देते हैं. देन कहते हैं कि तो फिर आप ऐसा करो कि दुनिया भर में जहां भी ये 6 कम्युनिटी के अगेंस्ट इनजस्टिस हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको भी लाओ इसमें. इसी 3 कंट्री से क्यों ले रहे हो? लेट इट बी ओपन फॉर रवांडन्स, रवांडा से जो लोग आ रहे हैं, या बहुत अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां से लोग आए हैं, उनके लिए भी खोलो. अरेबियन रीजन से खोलो, जो कुर्दिश हैं उनके लिए खोलो. जो उधर बाकी जहाँ ट्रबलसम एरियाज हैं, जहाँ इनजस्टिस हो रहा है, इन्हीं 6 जो इनके खिलाफ, तो उन सबके लिए खोलो. क्यों सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश? क्यों सिर्फ यही 3? तो ये सब इश्यूज हैं जो डिबेट इस पर चलती है. आप लोग भी इसके बारे में सोचिए. हाँ, क्या बता रहे थे भारत? सर मैं ये बोल रहा था, जैसे इन 3 कंट्रीज के जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और उनको अंडरस्टैंड, मतलब उनको यहाँ आके फायदा ही होगा. अगर हम नाइजीरिया वालों को देंगे या हाँ, उनको कम से कम लैंग्वेज का इश्यू नहीं आएगा. यस बिल्कुल. सर, उसी उसी बेस पे देंगे ना वो सिटीजनशिप. अगर बाहर की कंट्रीज वालों को भी लो करेंगे ना, कुछ वो ये समझ ये पाएंगे ना हम उनकी समझ पाएंगे. है, वो कोई इश्यू नहीं. बट जो आप कह रहे हो इसमें एक पॉइंट है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन जब कहती है सिटीजनशिप के लिए, जो एप्लीकेशन का कंसिडरेशन होता है, तो उसमें एक क्लॉज है कि आप इंडिया की जो 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उसमें से आप कम से कम एक लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए. तो अगर आप इंडिया के किसी लैंग्वेज को जानते हैं, सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, किसी लैंग्वेज को जो 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं जानते हैं, तो ये आपके एप्लीकेशन के फेवर में बात जाती है. वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज हो जाती है.